Okay. Okay, now pay attention. Okay. Pay attention here. Nothing you have to do. Not any kind of writing or all the things. One thing we can do it for sure that I have given you a homework, word problems or some. Yeah. Doubt. Sorry. Yes. 6. Okay, mostly 6 and 7. है ना? 4 also. So in short, all of them हो गया ना? सारे के सारे तो हो गए. Calculate the duration. Fourth one is just same as the second one only. Calculate the duration of the day if the sun rises at 6 hours 10 minutes and sets at 5 hours 15 minutes. That's not quite, you can say that easiest one also. थोड़ा hard भी है because इसमें जो duration of the day पूछा है, it's not duration of the hour. So you have to find that how much day is longer. कितना दिन हुआ. यहाँ पर जो टाइमिंग दिया है ना सनराइजेस का, वो किस तरह से कि सनराइज हो रहा है ऑन 6 hours and 10 minutes मीन्स मॉर्निंग के होंगे 6 hours and sets at 5 hours 15 minutes. So now that timing that would be not that one means कि वो 6 hours हो गए, उसके बाद वाला रोटेशन होके मीन्स पूरा का पूरा तब वो सेट होगा मीन्स इवनिंग के 5 o'clock. See, if it is like that कि around 6 hours that is the morning time. Now वो पूरा रोटेट होके at 6 hours it's at the evening time 5 o'clock 5 hours 10-15 minutes तब वो सेट हो रहा है. तो ये जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा that we have to find. Then one more thing over here it is not given, it is on evening और next day की जो morning है वो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है. That we can include it as a set because sets जो होता है वो evening में ही होता है. So we are taking that as an evening. Now, okay, pay attention. Exercise 11.4. The question number is the fourth. First we'll write the statement. Sun rises at 6 hours and 10 minutes. So that is 6:10 a.m. Then now sun sets at
the timing which is given, it is 5 hours and 15 minutes. So that is actually 5:15 p.m. Then it's a 5:15 p.m. because evening में ही sunset होता है, वो तो आपको पता होगा शायद, है ना? Then now that timing we cannot subtract now if you see in both of them. तो इसका जो आवर वाला पार्ट होगा वो यही होगा, 24 आवर वाला पार्ट. इसको हमें 24 आवर की क्लॉक में मिस कन्वर्ट करना पड़ेगा. Why? Because we need the difference between them. So we'll add 12 hours in that one. So 12 plus 5, so 17 and 15 hours. यहाँ पर अभी हम एम की जगह पर ले सकते हैं hours. है समझ में? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. So the difference is equals to, over here, hour, minute, (17 hours, 15 minutes, 6 hours, 10, minus 5 minus 0, 5, 1 minus 1, 0, 7 minus 6, 1, 1 minus 0, 1. So answer of this one is 11 hours and 5 minutes. Good. Next. Okay, out of 6 and 7 I can do the one of them. Select anyone. Sixth one. Pooja spends 6 hours 30 minutes every day in school. Means पूरे दिन की 6 hours and 30 minutes. 30 minutes she is spending on a school. How much time does she spend in school in 5 weeks? 5-day weeks. Means अगर वो पूरे वीक में 5 days अगर वो स्कूल पे जा रही है और वो एक दिन में कितना आवर स्पेंड कर रही है, 6 hours and 30 minutes, तो वो पूरे वीक में टोटल कितना टाइम स्कूल पे स्पेंड करेगी. अगर वो वाला वीक में वो 5 days जाती है तो दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग दैट कि 7 days होते हैं. देन तो वो अगर मंडे टू फ्राइडे जा रही है तो वो 5 days हो गए. देन अभी वो स्कूल में टाइम कितना स्पेंड हो रहा है उसका, 6 hours and 30 minutes. तो अगर एक दिन में इतना टाइम स्पेंड हो रहा है एंड 5 days में कितना होगा, दैट ओनली यू हैव टू फाइंड. ओके ओके, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, टाइम स्पेंड in school for 1 day. It is equals to 6 hours 30 minutes. The same way, time spent in school for, यहाँ पे वीक लिखा है बट यहाँ पर वीक में वो 5 days ही जा रही है. So that's why we are taking 5, not a 7. हाँ समझ में, वहाँ पे कुछ देखने का नहीं, डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो आप लोग. स्कूल फॉर 5 days is equals to what? 6 hours 30 minutes multiply by 5. Now over here यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर अभी मल्टीप्लिकेशन आया टाइम का.
देन अब तक हमारा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आता था, ये वाले क्वेश्चन में टाइम का मल्टीप्लिकेशन भी आया। नाउ पे अटेंशन हियर दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एनी डाउट? So 6 hours 30 minutes multiply by 5. Then 5 zeros are 0, 5 threes are 15. Now over here again जैसे हम एडिशन में करते थे वही सेम चीज हमें इसमें भी करनी है। 15 का 5 हम यहाँ पर रख के 1 कैरी ओवर नहीं कर सकते। Whatever we got as answer for the minute, we'll keep it as it is as answer for minute. Then 6 5s are 30. So it's actually 30 hours and 150 minutes. Right? Now this kind of answer we cannot say. Why? Because minutes जो है वो 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Now उसका पैरेलल क्वेश्चंस अगर हम देखें, यहाँ पर जो मिनट्स जो है वो 150 मिनट्स है। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है? 60। 2 आवर में कितनी होती है? 120। दैट मीन्स अगर इसमें से हम 2 आवर माइनस कर दे तो भी चलेगा। वाई? बिकॉज वो 120 से भी ज्यादा है। 3 आवर में कितनी होती है? 180। तो 180 से ये कम है, तो 180 मीन्स हम 3 आवर माइनस नहीं कर सकते। So that means we can subtract from this one 2 hours. 2 hours इसमें से हम subtract कर सकते हैं, and 2 hours is equals to how much minutes? 120 minutes. Okay? So अभी इसमें क्या करना है आपको? You have to subtract 120 minutes. Now ऐसे ही हम subtract कभी नहीं करते हैं। अगर हम subtract कर रहे हैं तो हमें कुछ add भी करना पड़ेगा और वो उसी की वैल्यू का होना चाहिए। यहाँ पर हम ऐड क्या करेंगे? वो करेंगे हम आवर सेक्शन में। कितने आवर ऐड करेंगे? 2 आवर ऐड करेंगे दिस टाइम। व्हाई? बिकॉज जब हम 60 मिनट माइनस करते हैं तब हम 1 आवर ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने 120 मिनट माइनस किए, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड 2 आवर्स। देन सो प्लस 2 आवर्स, that addition we got as a 32 hours, and that subtraction we got as a 30 minutes. The answer is 32 hours 30 minutes. Last we can write the answer of this one as Pooja spent 32 hours 30 minutes at school in 5 days week. Understood? I don't. Yes. Sit. Huh? Sorry. Okay. Sit. Not a problem. Statement you have to write compulsory. डायरेक्टली आंसर हम नहीं लिख सकते, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज वर्ड प्रॉब्लम। सो उसका आंसर हमें हमेशा वर्ड में ही लिखना पड़ता है। कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, एग्जाम में अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे वर्ड प्रॉब्लम में तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे।
Do it fast. आयुषी तुझे दिख रहा है वहां पे लास्ट? आफ्टर दिस लेक्चर ना बेंचेस को थोड़ी आगे ले ले, है ना? हाँ बस नेक्स्ट लेक्चर के बाद, सेकंड लेक्चर के बाद आपका जो शॉर्ट ब्रेक होता है 10 मिनट्स का, उसमें बेंचेस को थोड़ी आगे ले लेना, स्टिल यहाँ तक ले लेना, ताकि बिकॉज आप पीछे वैसे इतना तो वैसे भी गैप है, आगे ले लोगे तो आपको दिखेगा भी ठीक से, ठीक है? नॉट नीडेड इफ यू, इट्स कंपल्सरी अभी हम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ 3 days आप स्कूल आ रहे हो, इसमें रोटेशन वाला अभी हम पार्ट नहीं करें, बट इफ यू नीड देन वी कैन स्टार्ट। ओके डन। थोड़ा फास्ट लिखो बिकॉज हमें इसके बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, क्लोज द कर्टेन्स, रिफ्लेक्शन। बोल तो रहा हूँ तुझे गर्मी लग रही है ना, बाहर बैठ जाएगा। हाँ yes, all the things you have to write. If you haven't done that question, अगर आपने किया है अपने हिसाब से तो वो चलेगा। हाँ, that I forget. As just the duration of the day is 11 hours 05 minutes. Okay, done? Shall I erase it? Yes. लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, दिख रहा है? तुझे क्या लेना देना, तुझे तो होना है ना ज्वाइन, नेक्स्ट टाइम मत आना, ज्वाइन हो। That's why this time I'm going to make the project individual only. So आप अपना ही काम कर पाओ, इंडिविजुअली करना है। हाँ, अगर मोस्टली टाइम मिला तो इधर ही बनाना, बिकॉज यू विल गेट 1 week टाइम फॉर दैट। I'll tell you soon, I'll tell you, don't worry. हाँ वंश, हाँ ओके, I'm erasing it, है ना?
Okay, done now. Yes. 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 No need to ask for drinking water, guys. Okay, I'm erasing it now. Okay, so after seeing this one, you think about that कि सर ने शायद अभी एसएस या फिर इंग्लिश स्टार्ट कर दिया है ना? Okay. Okay, whatever it is. See, Journey to Dreams. This project is mainly based upon your dreams. All of you have a dreams to visit some kind of unique place. जो आपका ऐसा ड्रीम होता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊं या फिर बड़ी हो जाऊं तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार जरूर जाऊंगा. एक प्लेस ऐसी होती है, whether it is in India, out of India, wherever. Then we are talking about right now Earth only, not out of the Earth. आपको स्पेसिफाई कर दूं मैं. We are talking about right now just Earth location. यहाँ पे Earth में जितने हैं उसकी बात कर रहे हैं, out of the space की बात नहीं कर रहे. ठीक है? Okay, pay attention here. So mainly in this project, what you have to do, we are calculating the journey. हम पूरी की पूरी अपनी जर्नी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो आप अभी से वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके रखो कि आप किस तरह से जाओगे. Then, say for example, date you can start it from the tomorrow. Then, means it's not a fix, but हम एक डेट लेंगे कि हाँ ये हमारी डिपार्चर डेट होगी. Say for example, if I talk about myself, then so that departure date of mine is let's say 21/11 and 21. Then okay, yeah, tomorrow. अपना बर्थडे भी याद नहीं है ना बोल रही है. Okay, pay attention here. Pay attention here. पहले पूरी सुन लेना किस तरह से करना है, आपको क्या करना है. उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, बीच में मत पूछना, बाद में मैं आंसर नहीं दूंगा. Say for example, this is your departure date. Means आप इस दिन को आप निकलने वाले हो. Now, wherever you are going, तो आप उसमें किस तरह से जाओगे. Say for example, if I am going to the Bangalore, if I am going to the America, if I am going to the anywhere else, then पेरिस जा रहा हूँ मैं या फिर कोई भी यहीं पे ही जा रहा हूँ मैं. So minimum you can consider that कि 3 days की जर्नी होनी चाहिए. We are talking about just a journey, 3 days minimum. Maximum आप 7 days भी ले सकते हो, 15 days भी ले सकते हो. But it is अगर आप 7 days लोगे तो मीडियम आपका हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसमें 7 days में बन जाएगा. Because in this one, say for example, अगर आप पेरिस जा रहे हो,
सो पेरिस यहाँ से नॉर्मली यू हैव टू गो विद द फ्लाइट. सो से फॉर एग्जांपल आप अगर ये डेट पे जा रहे हो, देन so from here first of all you have to go to the Mumbai. then यहाँ से मुंबई आपको जाना पड़ेगा. इधर वे अहमदाबाद जाना पड़ेगा. मोस्टली शायद तो मुंबई जाना पड़ेगा बिकॉज वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. तो वहां से आप डायरेक्टली वहां की फ्लाइट आपको मिल सकती है. देन सो what you have to do that say for example your departure time on this date is 7:30 a.m. that is from Morbi. Now considering that कि आप बाय कार जा रहे हो या फिर बाय ट्रेन या फिर किसी भी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो, सो वी आर टेकिंग एज 8 hours journey to the Mumbai. So from here to move at 8 hours, let's say around 2:00 p.m. you reach Mumbai. Then at 2:00 p.m. you reach Mumbai. Now on that day there is a flight to the Paris. There is a flight to the Paris at 6 p.m. That's the Mumbai airport. Mumbai to Paris. Then now around time we are taking about 22 hours. That we are taking as a 22 hours journey it is from Mumbai to Paris. Then it will take 22 hours. So 22 hours के बाद टाइमिंग क्या होगा वो आपको फाइंड करना. Now obviously if it is a 22 hours journey तो यहाँ पर डेट जो होगी वो चेंज हो गई होगी, 21 से 22 हो गई होगी. Now after that what you have to find means कि around 2 days जो है वो आपको मीन्स यहाँ से लेके सिर्फ वहां पे तक पहुंचने में चले गए. देन बिकॉज वहां पे जाने के बाद भी आपका यू कैन से दैट 3 hours के लिए तो वेरिफिकेशन और वो सब होता है. देन सो वो वाला 3 hours का टाइमिंग आपको निकाल देना है, मीन्स वो उसमें ऐड कर देना है. बिकॉज इसमें हम एक आवर ऐड करेंगे, जो भी आप करोगे पूरा का पूरा ऐड करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा कि 7:30 AM को हम निकले मोरबी से, 2 PM को हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से 6 PM तक हमने वहां पर वेट किया बिकॉज 2 hours अराउंड दैट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है वहां पर चेकिंग ज्यादा होती है. सो बोर्डिंग का टाइमिंग उसमें आपको अराउंड 2 hours जल्दी जाना पड़ता है. डन. सो 6 PM को हमारी फ्लाइट थी मुंबई टू पेरिस. 22 hours की हमारी जर्नी थी. नेक्स्ट डे पे आप कितने बजे पहुंचे वहां पर, दैट यू हैव टू मेंशन. देन डेट यू हैव टू मेंशन. नाउ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी. नाउ दिस इज जस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द वन डे. दिस इज जस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द वन डे ओनली. देन आपको इस तरह से यू कैन मेक मिस वहां पर मेनली वहां पे जर्नी का आपको 3 दिन का प्लानिंग अगर आपको मिनिमम बनाना है तो 3 दिन का प्लानिंग आपको बनाना है. से फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे यू गो टू वॉच द एफिल टावर. देन तो वो आप कितने बजे गए, कैसे गए, वहां पे पहुंचे कैसे. देन सो दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव टू मेक. नाउ सी इफ यू आर मेकिंग अ 3 days प्लान, सो ये वाला पार्ट जो है वो इनिशियल में आ जाएगा इस साइड. देन आफ्टर ये एक पार्ट हो गया इस साइड इस डेट का. देन सेकेंड वाले डेट का यहाँ पर आपका डे फर्स्ट डे ऑफ द जर्नी. देन
दैट इज हाउ इट। फर्स्ट डे ऑफ द जर्नी, वहां पे आपने किस तरह से कहाँ गए, कितने टाइम पे गए, देन वो आपको काउंट करना है, वो आपको लिखना है। नाउ फॉर दैट यू कैन प्लेस द स्टिकर ऑफ दैट ऑल्सो। वहां पे जो भी आप प्लेस पे जा रहे हो, देन वहां पे आप स्टिकर भी लगा। अगेन गाइस, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज मुझे यहाँ पे जाना है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट सेलेक्टेड माय प्लेस ओनली। सो हाँ, this just don't consider that. Don't consider that. Pay attention here. So it's not like that कि वहाँ पे सिर्फ यही चीज अच्छी है, एफिल टावर ही है, बहुत अलग अलग चीज है। सो मॉर्निंग में आपने कहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच कहाँ पे किया, कौन सी होटल में किया, कितने बजे किया, उसके बाद आप रात को डिनर कहाँ पे किया, वो पूरी डिटेल्स, अगर वो इफ इट इज पॉसिबल, because you will get 1 week time period for this one, and this one is the individual project. This is the individual project है ये। आपको ये वेडनेसडे को सबमिट करना रहेगा। यस, नेक्स्ट वाले वेडनेसडे को सबमिट करना रहेगा। सो यू विल गेट टुमारो संडे, वॉल मंडे, ट्यूसडे, दैट्स 3 days you will get। 3 दिन आपको मिल रहे हैं। So it is very enough for you guys, because आपको सिर्फ अपने जो भी जगह पे आपको जाना है उसके रिलेटेड मोस्टली थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि वहां पर क्या है क्या नहीं है, कहाँ वहां पे घूमने का क्या क्या जगह है, वो आपको पता ही होगा कि वहां पे अगर हमें घूमने जाना है तो इतना दिन लगेगा हमें, तो ये वाले दिन पे हम यहाँ पे जाएंगे, वो आपको ऑलरेडी सॉर्टेड आउट ही होगा। इसलिए मैंने ड्रीम वाला ही रखा है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं रखा, ताकि आपको जहाँ पे जाना आप जा सके। सो दैट्स द डे 1। डे 2 में हम दूसरा वाला डेज का लिखेंगे, डे 3 में हम तीसरे वाला डेज का लिखेंगे। देन 3 days इज इनफ, 3 days इज इनफ, उतना तो आपके लिए बहुत रहेगा। हाँ, उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट वो आई गेस यू कैन यूज द A2 or A3 sheet paper. Minimum 3 days, excluding that day of departure and day of arrival. मीन्स वो डिपार्चर वाला और अराइवल वाला डेज आपको नहीं गिनना, बिकॉज वो 4 दिन तो वही हो जाएंगे। उसके अलावा के जो 3 days की जो आप जर्नी करोगे, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, अगर मीन्स इफ इट इज आउट ऑफ इंडिया, तो वहां पर मेनली आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि 2-2 दिन तो आपके वो जर्नी में ही निकल जाएंगे। भाई वहां पे जो घूमने हैं वहां उसके आपको 3 दिन रहने हैं। हाँ, इफ इट इज इन इंडिया ओनली, तो उसमें आपको 1 days एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो वो टोटल जर्नी जो होगी वो 5 days की हो जाएगी। इफ इट इज आउट ऑफ इंडिया, देन वो टोटल जर्नी 7 days की हो जाएगी। आया समझ में? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस प्रोजेक्ट गाइस। अगर आपको मिस एज यू कैन सी दैट ये ड्रीम वाला ही है, तो दैट मीन्स आपको जहाँ पर जाना है उसके रिलेटेड ही आपको सब कुछ सर्च करना रहेगा। अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल नहीं भी पता है, तो इफ यू जस्ट राइट आउट इन द गूगल ओनली दैट से फॉर एग्जाम्पल famous place of this city or somewhat like that, उसमें भी अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फेमस रेस्टोरेंट उसमें आप ऐड करोगे, हाँ रेस्टोरेंट का आपको नहीं पता तो वो भी आप सर्च करके कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये जो 3 days की जर्नी है उसमें आपको मिनिमम एक फोटो तो स्टिक करना है उसका, कि जहाँ पर आप जा रहे हो, जाने वाले हो। देन एट द एंड ऑफ द डे ऑफ जर्नी एक फोटो उसका स्टिक करना। देन इट्स नॉट कंपल्सरी टू, ऑब्वियसली यहाँ पर वो एज इट इज अ प्रोजेक्ट, सो ब्लू पेन का यूज नहीं करते हम, कलर पेन अगर हो तो वो अच्छी बात रहेगी। हाँ, स्केच पेन इट इज वेरी, A4 साइज पेपर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तो चार्ट पेपर ऑब्वियसली आई सजेस्ट दैट कि एज इट इज मीन्स अगर आप ये वाला पार्ट जो है
वो वाला एक कॉर्नर में आ जाएगा। डे ऑफ द अराइवल का भी एक कॉर्नर में आ जाएगा लास्ट में। यहाँ पर इस तरह से आप स्टार्ट करोगे तो ये वाला पार्ट जो है ये इस साइड के कॉर्नर में आ जाएगा। डे ऑफ द अराइवल वाला आप यहाँ पे लास्ट में कंप्लीट कर सकते हो। नाउ द रिमेनिंग पार्ट, उसके आपको अगर मैं ऐसा सेट किया, अगर आप 3 डेज की जर्नी कर रहे हो तो उसमें आपको 3 डेज में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट डे ऑफ जर्नी, सेकंड डे ऑफ जर्नी एंड थर्ड डे ऑफ जर्नी। फर्स्ट डे ऑफ जर्नी में आपने मॉर्निंग से उठ के रात के सोने तक जो भी किया है, जहाँ पे भी गए हो, जहाँ पे भी खाना खाए, जहाँ पे भी घूमे हो, जिस पे भी घूमे हो, वो सब लिखना है। बिकॉज यहाँ पर हम बिटवीन देम, यहाँ पर हम टाइमिंग इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस वन, यहाँ पर आपको लास्ट में वो टोटल आवर लिखना है। सो दैट वे मीन्स हमारा, बिकॉज ये टाइम का चैप्टर है तो वो हमारा टाइम वाला पार्ट भी आ जाए। लास्ट में यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने 7:30 AM टू यहाँ पर जितने भी आवर्स हुए होंगे टोटल जर्नी, वो हम टोटल यहाँ पर हम लिखेंगे। देन दैट मोरबी टू पेरिस इज इक्वल्स टू कितने आवर्स हुए, ऐसे। नाउ यहाँ पर जैसे फर्स्ट डे ऑफ जर्नी, तो उसमें फर्स्ट डे ऑफ जर्नी में आप यहाँ पर जैसे टोटल आप काउंट करोगे, टोटल कितने आवर्स हुए, तो आप जैसे जैसे 1 बाय 1 लिखते जाओगे कि इतने बजे में यहाँ पे गए, इतने बजे में यहाँ पे, तो वो टोटल वो भी आ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ आ रहा है समझ में? देन हाँ हाँ हाँ, अगर उसके मिल जाते तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो हांगकांग का आप फर्स्ट वाले के नीचे चिपका सकते हो। पे अटेंशन। नाउ इफ यू आर मूविंग टू द हांगकांग, तो फर्स्ट डे में आप हांगकांग में कौन सी जगह पर गए तो आपको मिल ही जाएगा। कोई भी छोटी प्लेस होती है ना उसका भी मिल जाता है। अगर आप मोर भी सर्च करोगे ना तो उसका भी फोटो आता है ऊपर। तो अगर कोई भी छोटी प्लेस होती है ना उसका फोटो आता है, इंक्लूडिंग द रेस्टोरेंट ऑल्सो, इंक्लूडिंग द विजिट काइंड ऑफ फेमस, एनी काइंड ऑफ फेमस प्लेस। देन कोई भी फेमस प्लेस पर अगर, तो उसका फोटो भी आपको मिल जाएगा। फोटो क्या, उसका इफेक्ट पड़ता है, अच्छा दिखता है, आपको भी अच्छा लगता है उसमें। देन सो दिस वे यू कैन मेक इट। A2 साइज का अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। आपको A2 साइज का जो पेपर होता है वो, एज आई सेड, सी नॉर्मली ये जो पेपर्स होते हैं आपके वो A4 साइज के होते हैं। A3 साइज के उससे थोड़े बड़े आएंगे, जिसमें अगर आपका 5 डेज का अगर है, 5 डेज मीन्स इंडिया के अंदर ही, तो उसमें वो आ जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है अच्छे से, देन यू कैन टेक A2 साइज पेपर। A2 वो बड़ा आएगा। सो उसमें आपका इंटायरली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा, वो भी अच्छे से। दिस इज द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एग्जाम। 20 मार्क्स की एग्जाम है, राइट, 20 मार्क्स की एग्जाम है। और ऐसे भी नहीं होगा बिकॉज दैट इज यू ओनली हैव टू डू। व्हाई? बिकॉज इसके बाद सभी भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, ऑन द डे ऑफ दैट सबमिटेड, जब आप प्रोजेक्ट की सबमिट करोगे तो इसके रिलेटेड में थोड़ा क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो अगर वो आपने किया होगा ना तो पता चल जाएगा, अगर आपने नहीं किया होगा, किसी और से करवाया होगा, तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली। हाँ हाँ, नॉट हैंड राइटिंग, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछूंगा कि हाँ यहाँ पर अगर आपने ये वाला सर्च किया होगा तो वो कहाँ पर है, लाइक सम वॉट लाइक दैट। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग टोटल 5 डेज। आपको टोटल 5 डेज मिल रहे हैं, उसमें भी कल का पूरा दिन आपको मिल रहा है, संडे का आपका पूरा दिन मिल रहा है। अगर आप संडे को पूरा कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Then, and this is an individual project. This time I'm not taking about as a group project because बाद में आपको ही प्रॉब्लम रहती है कि इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। तो अभी आप नहीं बोल पाओगे कि इसने नहीं किया, बिकॉज वो आपको ही करना है।
इट्स इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, इसीलिए मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट रखा है जिसमें आपको ग्रुप की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज आपकी ड्रीम प्लेस जो होगी हर एक की नहीं हो सकती है ना, है ना? यस, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द एग्जाम अराउंड, बिकॉज वो मुझे पता है कि वहाँ पर वो 22 आवर्स की जर्नी लगती है, इसलिए मैंने लिखा था। अभी आप अगर कोई दूसरी जगह पे जा रहे हो तो उसमें आपको फ्लाइट का सर्च भी करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितनी आवर्स की जर्नी लगती है। ये मैंने रैंडमली एक भी चीज नहीं लिखी है। आपको लग रहा हो कि ये रैंडमली लिखी है, तो रैंडमली एक भी चीज नहीं लिखी है। मुंबई टू पेरिस 22 आवर्स की जर्नी ही होती है, बिकॉज ये ऑलरेडी मुझे पता है। यहाँ पे यहाँ से काउंट कर लो। हाँ, around if it is depend upon again driver. हाँ, as I said depend upon again driver। वो अलग अलग होते हैं। No, mainly if it is a good driver, if it is a good driver, then you can say that around 8 to 10 hours। हाँ, if it is, अगर आपको मिल जाते हैं तो, so that whatever the project you making, it's look realistic। Then yes, as I said guys, again pay attention here, it's a 20 marks enrichment exam। इसके मार्क्स डायरेक्टली आपको फाइनल में ऐड होंगे, नॉट इन PA2, नॉट इन टर्म 2, डायरेक्टली जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें आपको ये मार्क्स ऐड होते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एग्जाम है इसलिए, और हमने टर्म 1 में नहीं ली थी तो टर्म 1 के मार्क्स कंबाइंड भी नहीं होंगे। दैट मीन्स ये डायरेक्टली 20 मार्क्स आपके ऐड हो रहे हैं। इसलिए मैंने आपको 2 दिन से मैं आपको उसमें भी बोल रहा हूँ प्रेजेंट रहना, बिकॉज ये वाला प्रोजेक्ट ऑनलाइन में या फिर फोन में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं रहे। एनी डाउट नाउ एनीवन? समझ में आ गया ना? ओके। कहाँ पे जाना है? मैं जाऊंगा। बाय बाय गाइस।